नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक बयान, एक धमकी और एक बड़ा फैसला पूरी दुनिया की तकदीर बदल सकता है। पश्चिम एशिया की फिजाओं में फिर से तनाव तैर रहा है, समंदरों में युद्धपोतों की हलचल बढ़ रही है, आसमान में लड़ाकू विमानों की गूंज भी सुनाई दे रही है और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका एक बार फिर से ईरान के सामने हमलावर तेवर में खड़ा दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा चेहरा है जो कभी बातचीत की बात करता है तो कभी ऐसी चेतावनी देता है जिससे पूरी दुनिया सहर उठती है। डील नहीं हुई तो महायुद्ध होगा। ट्रंप की इस धमकी ने सिर्फ तेहरान ही नहीं बल्कि दुनिया की बड़ी ताकतों की धड़कनें बढ़ा दी है। We're ensuring that the Iranian regime cannot continue to arm, fund, and direct terrorist armies outside of their borders. If no action was taken now, no action could be taken in the future. The hardest hits are yet to come from the U.S. military. ईरान पर ट्रंप का खतरनाक गेम प्लान, ट्रंप के यू टर्न से ग्लोबल भूचाल। Work in progress. As I said, we thought we might have some news last night. Maybe today. I wouldn't read too much into it. It takes a little while to hear back. So we have what I think is a pretty solid thing on the table in terms of their ability to open up the straits, get the straits open, enter into a very real, significant, time-limited negotiation on the nuclear matters, and hopefully we can pull it off. It has a lot of support in the Gulf. It has a lot of support globally. Every country that we've walked through it understands it's not just very reasonable, but it's the right thing for the world to get done. As the president said, he's not in a hurry. He's not going to make a bad deal. I mean, the president's not going to make a bad agreement. So let's see what happens. We're going to give diplomacy every chance to succeed before we explore the alternative. पश्चिम एशिया में सुलह या संग्राम, महायुद्ध की धमकी से दुनिया अलर्ट। ईरान पर ट्रंप का आर पार अल्टीमेटम। क्या दुनिया तीसरे महायुद्ध की दहलीज पर? आज की दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हालात तेजी से बदल रहे हैं और हर दिन नए राजनीतिक संकेत सामने आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो हलचल इस वक्त देखने को मिल रही है उसने पूरे ग्लोबल सिस्टम को अलर्ट कर दिया है। खासकर पश्चिम एशिया का इलाका एक बार फिर बड़े तनाव और बड़े फैसलों के बीच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका, ईरान और बाकी क्षेत्रीय ताकतों के बीच जो माहौल बन रहा है वो साफ इशारा कर रहा है कि आने वाला समय आसान नहीं होगा। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का नाम एक बार फिर सुर्खियों में है। उनके बयान, उनकी रणनीति और उनके अचानक बदले रुख ने दुनिया को सोच में डाल दिया है। The true story of American greatness, and greatness it is. Here beneath arching trees and white stones so beautiful, these many are made one again, united forever as brothers and sisters in arms and children of our fathers in heaven. From coast to coast, from proud cities to humble towns, and from heartland fields, from every race and religion, they came because they could not bear the thought that the nation they love so much might ask for heroes and hear no answer. But they answered, and they answered very, very loudly. At Ticonderoga and San Juan Hill, at Manila Bay and Midway, at Point du Hoc and Busan,
The courage of the American warrior has forged a path through every sea and every place that's marked a trail to every corner on the earth. In 250 years, America's heroes have saved more lives, freed more captives, accomplished more good, and spread more hope than any other people at any time in the history of the world. कभी वो बातचीत और समझौते की बात करते हैं तो कभी बहुत सख्त लहजे में चेतावनी दे देते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जारी शांति वार्ता के बीच डील को लेकर बड़ी धमकी दी है। उन्होंने कहा, यह या तो सभी के लिए बेहद बड़ी डील साबित होगी या फिर कोई समझौता नहीं होगा। ऐसी स्थिति में दुनिया फिर युद्ध के मैदान में लौट जाएगी। पहले से कहीं बड़े पैमाने पर गोलीबारी शुरू हो सकती है, जिसे कोई भी नहीं चाहता। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति अमेरिका। डील नहीं हुई तो महायुद्ध होगा जैसा बयान सिर्फ एक राजनीतिक लाइन नहीं बल्कि उस दबाव की राजनीति को दिखाता है जिसमें सामने वाले को झुकाने की कोशिश की जाती है। लेकिन ऐसे बयान का असर सिर्फ एक देश तक नहीं रहता, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। ट्रंप की यह धमकी ऐसे समय में सामने आई है जब ईरान और अमेरिका के बीच हो रही शांति वार्ता लगातार लंबी खिंचती जा रही है। ईरान और अमेरिका दोनों ही तरफ से अच्छे संकेत दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। ईरान के साथ लंबी खिंचती बातचीत के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कोई भी नहीं चाहता कि पश्चिम एशिया का युद्ध फिर से शुरू हो, इसलिए बेहतर है कि डील हो जाए। सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने पश्चिम एशिया के राष्ट्राध्यक्षों के साथ हुई अपनी बातचीत का ब्यौरा भी साझा किया। उन्होंने बताया, खाड़ी देशों के नेताओं, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान के साथ मिलकर इस संकट को सुलझाने के लिए बातचीत की है। उम्मीद है कि ये जल्दी ही सुलझ जाएगा। लेकिन इसके साथ ही ट्रंप ने अपील की कि ये सभी देश अब्राहम अकॉर्ड पर भी हस्ताक्षर करें। इतना ही नहीं, ट्रंप ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो ईरान भी अब्राहम अकॉर्ड पर हस्ताक्षर कर सकता है। दरअसल पश्चिम एशिया की राजनीति में हलचल लगातार बढ़ती जा रही है और अब्राहम समझौते को लेकर सामने आ रहे नए रुख ने कूटनीतिक माहौल को भी और गर्म कर दिया है। एक तरफ अमेरिका इस समझौते के दायरे को बढ़ाने की कोशिश करता नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ कुछ देशों की ओर से मिल रहे इनकार ने इस पूरे समीकरण को और मुश्किल बना दिया है। पाकिस्तान के रुख ने भी इस बहस को नया मोड़ दे दिया है, जहां इजरायल के साथ रिश्तों को सामान्य करने की संभावना पर फिलहाल ब्रेक लगता दिख रहा है। ट्रंप ने अपने संदेश में इस्लामिक देशों के अब्राहम अकॉर्ड को लेकर एक बड़ा संकेत दिया और साथ ही उस डर को भी सामने रखा जो इस समझौते को लेकर कई देशों के भीतर दिख रहा है। अब्राहम अकॉर्ड जो पहले ही पश्चिम एशिया की राजनीति में रिश्तों की नई शुरुआत का प्रतीक बन चुका है, अब एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। So President Trump may have brought up the issue of establishing diplomatic relations with Israel and joining the Abraham Accords in calls with these countries' leaders, but I don't think that this really means that they will comply. सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने इस्लामिक देशों के अब्राहम अकॉर्ड को स्वीकार न करने के डर को भी अहमियत दी। उन्होंने कहा, संभव है कि एक या दो देशों के पास ऐसा न करने का कारण हो, हम उसे स्वीकार भी करेंगे, लेकिन ज्यादातर देशों को इसके लिए तैयार होना होगा। इससे ईरान के साथ होने वाला समझौता और भी ज्यादा ऐतिहासिक हो जाएगा। यह समझौता संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मोरक्को, सूडान और कजाकिस्तान के लिए वित्तीय, आर्थिक और सामाजिक बूम साबित होगा।
इस संघर्ष के दौर में इन देशों को फायदा भी मिला है। आपको बता दें कि अब्राहम एकॉर्ड अमेरिका द्वारा बनाए गए समझौतों की एक लिस्ट है। इसका मकसद इजराइल और अरब देशों के बीच के राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाना है। डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान शुरू हुए इस समझौते पर सबसे पहले संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और मोरक्को ने हस्ताक्षर किए थे। सूडान ने भी इसको सहमति दी थी, लेकिन अभी तक उसकी संसद ने इस पर हामी नहीं भरी है। वह अमेरिका का करीबी माने जाने वाला सऊदी अरब भी अभी तक इस समझौते से दूरी बनाए हुए है। हालांकि सऊदी क्राउन प्रिंस ने इस समझौते में शामिल होने के लिए एक शर्त रखी थी। उन्होंने कहा था वो इसमें शामिल होने के लिए तैयार है, बशर्ते इसमें 2 राष्ट्र समाधान को लेकर स्पष्टता हो। लेकिन वहीं अब अरब देशों और इस्लामिक देशों की दुनिया में अब्राहम एकॉर्ड्स को फिलिस्तीन के साथ धोखे के तौर पर देखा जाता है। इसीलिए ज्यादातर देश इससे कन्नी काटते हुए नजर आते हैं। इस समझौते के बाद देशों को इजराइल के साथ सामान्य संबंधों पर राजी होना पड़ेगा, जिससे उनकी जनता इस पर नाराज हो सकती है। Not a realistic proposition, and indeed, when Trump first made the suggestion, it was greeted with stony silence by those countries he was meeting with. If anything, the region is finding ways of accommodating an undesirable reality that Iran has prevailed in this war and will emerge from the war as the primary power in the region. वहीं पाकिस्तान जैसे देश के लिए तो यह समझौता और भी ज्यादा परेशानी पैदा करने वाला है, क्योंकि वो इजराइल को देश के रूप में मान्यता ही नहीं देता है। सऊदी अरब और पाकिस्तान की भूमिका भी इस पूरे समीकरण में काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। सऊदी अरब अपनी सुरक्षा को लेकर हमेशा सतर्क रहता है और अमेरिका के साथ उसके संबंध रणनीतिक रूप से बहुत मजबूत है। वहीं पाकिस्तान अपनी विदेश नीति में हमेशा संतुलन बनाने की कोशिश करता है, जिससे वो किसी एक पक्ष में पूरी तरह ना झुके। इन सभी हालातों के बीच ट्रंप की रणनीति और भी दिलचस्प हो जाती है। उनका तरीका पारंपरिक राजनीति से अलग है। वो सीधे और सख्त बयान देते हैं, जिससे सामने वाले पर तुरंत दबाव बनता है। और यही वजह है कि उनकी नीति को लेकर दुनिया में लगातार बहस बनी रहती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कब क्या कहेंगे, शायद खुद उन्हें भी नहीं पता रहता। यही कारण है कि अक्सर उनके बयानों को लेकर संशय बना रहता है। अब ईरान को लेकर ही देख लीजिए, शांति समझौते को लेकर लगातार विरोधाभासी बयान दिए गए। एक दिन पहले उन्होंने दावा किया कि तेहरान के साथ समझौता काफी हद तक तैयार है। तब लगा कि सब ठीक होने वाला है। अभी कयासों का बाजार गर्म ही था कि दूसरे दिन ही ट्रंप ने कह दिया कि कोई जल्दबाजी नहीं है और प्रतिबंध तब तक बरकरार रहेंगे जब तक ईरान अमेरिकी शर्तों का पूरी तरह पालन नहीं करता। महज 24 घंटे के अंदर ट्रंप के इन बयानों ने वैश्विक बाजारों में उछाल और गिरावट दोनों देखी। पहले उनके आशावादी बयान से तेल की कीमतों में आई कमी और एशियाई शेयर बाजारों में तेजी दर्ज की गई, लेकिन बाद में सावधानी भरे बयानों से बाजार फिर अस्थिर हो गए। आपको बता दें, ट्रंप के बयानों में उतार चढ़ाव नया नहीं है। उन्होंने हाल के दिनों में एक तरफ तो बातचीत को निर्णायक मोड़ पर बताया, वहीं दूसरी ओर सैन्य दबाव की चेतावनी भी दी। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के लगातार बदलते बयानों ने पूरी तस्वीर को बहुत ज्यादा उलझा दिया है। कभी कड़ी चेतावनी, कभी बातचीत का संकेत और कभी सीधे टकराव जैसे तमाम तरीके के उनके लहजे, इन सब को मिलाकर उनकी रणनीति एक पहेली बन चुकी है, जिसे वैश्विक राजनीति भी पूरी तरह समझ नहीं पा रही है। और इसका असर भी सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर अब वैश्विक बाजारों पर भी दिखाई देने लगा है। जैसे ही बयान सामने आते हैं डोनाल्ड ट्रंप के, तेल की कीमतों में हलचल बढ़ जाती है, शेयर बाजारों में उतार चढ़ाव तेज हो जाता है और निवेशक एक बार फिर से अस्थिरता के माहौल में पहुंच जाते हैं। ईरान पर दबाव की ये राजनीति क्या किसी बड़े समझौते की तरफ इशारा कर रही है, या फिर आने वाले दिनों में टकराव और बढ़ने वाला है?
दुनिया की राजनीति में जब भी किसी बड़े नेता का बयान आता है, उसका असर सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सीधा असर वैश्विक बाजारों पर भी देखने को मिलता है। और इस समय सबसे ज्यादा ध्यान जिस चीज पर है वो है डोनाल्ड ट्रंप के ईरान को लेकर दिए जा रहे बयान और उनसे पैदा होने वाली शंका पर। आपको बता दें, ट्रंप के बयान अक्सर अचानक आते हैं। वो कभी ईरान पर सख्त रुख की बात करते हैं, तो कभी समझौते का संकेत देते हैं और कभी सीधे टकराव जैसी चेतावनी दे देते हैं। यही उतार चढ़ाव बाजारों के लिए सबसे बड़ी चिंता बन जाता है, क्योंकि वित्तीय बाजार स्थिरता पर चलते हैं और जब राजनीतिक बयान अस्थिरता पैदा करते हैं तो उसका असर तुरंत दिखाई देता है। जैसे ही ट्रंप का कोई बयान सामने आता है जिसमें ईरान को लेकर तनाव या सख्ती की बात होती है, सबसे पहले असर कच्चे तेल के बाजार पर दिखता है। तेल की कीमतें तेजी से ऊपर जाने लगती है, क्योंकि पश्चिम एशिया दुनिया के तेल सप्लाई का सबसे अहम केंद्र है। निवेशक ये मान लेते हैं कि अगर तनाव बढ़ा तो सप्लाई रुक सकती है और इसी डर से कीमतें बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ अगर किसी बयान में बातचीत या समझौते का संकेत मिलता है तो बाजार थोड़ी राहत की सांस लेते हैं। तेल की कीमतों में नरमी आती है और निवेशकों का भरोसा थोड़ा मजबूत होता है। लेकिन ये राहत अक्सर अस्थायी होती है, क्योंकि अगले ही बयान में स्थिति फिर बदल सकती है। शेयर बाजार पर भी इसका सीधा असर पड़ता है। खासकर एशिया, यूरोप और अमेरिका के बाजार इन बयानों पर तेजी से जवाब देते हैं। जब तनाव बढ़ता है तो निवेशक सुरक्षित निवेश की तरफ भागते हैं और जोखिम वाले शेयरों में गिरावट देखने को मिलती है। पश्चिम एशिया की स्थिति को अगर बड़े नजरिए से देखें तो यह सिर्फ 2 या 3 देशों का मामला नहीं है। इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। तेल की सप्लाई, ऊर्जा की कीमतें, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश, सब कुछ पश्चिम एशिया की स्थिरता पर निर्भर करता है। इसीलिए जब भी यहां तनाव बढ़ता है, दुनिया के बाकी हिस्सों में भी असर महसूस किया जाता है। ट्रंप की डील या महायुद्ध वाले बयान इसी तनाव को और बढ़ा देते हैं। ये बयान एक तरफ दबाव बनाने का काम करते हैं तो दूसरी तरफ ये संकेत भी देते हैं कि हालात मुश्किल है। अब्राहम समझौते को लेकर जो इशारे मिल रहे हैं वो ये भी बताते हैं कि अमेरिका एक बार फिर पश्चिम एशिया में नए गठजोड़ बनाने की कोशिश कर सकता है। अगर ईरान को छोड़कर बाकी देशों के बीच कोई नया समझौता बनता है तो ये क्षेत्रीय राजनीति को पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन हर रणनीति के अपने जोखिम होते हैं। अगर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ता है तो उसका उल्टा असर भी हो सकता है। ईरान जैसे देश दबाव में झुकने के बजाय ज्यादा सख्त रुख अपना सकते हैं। इससे तनाव कम होने के बजाय और बढ़ सकता है। आज की स्थिति यही दिखा रही है कि दुनिया एक अनिश्चित दौर में प्रवेश कर चुकी है। एक तरफ बातचीत की कोशिशें हैं तो दूसरी तरफ सख्त बयान। एक तरफ समझौते की बात हो रही है तो दूसरी तरफ युद्ध की चेतावनी दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो एक बार फिर से पूरी दुनिया की निगाहें पश्चिम एशिया की बदलती तस्वीर पर टिक चुकी हैं, जिसमें कभी सख्त तेवर हैं, कभी बातचीत के संकेत हैं और कभी सीधे टकराव की चेतावनी भी है। और इन सब ने मिलकर वैश्विक राजनीति को एक ऐसी स्थिति में ला खड़ा किया है जहां हर बयान सिर्फ बयान नहीं बल्कि एक बड़ा संदेश बन गया है। डील नहीं हुई तो महायुद्ध होगा। और एक लाइन ने कूटनीतिक माहौल को, इस एक लाइन के कूटनीतिक माहौल ने और ज्यादा मुश्किल आने वाले वक्त में यहां पर बना दिया है। दूसरी तरफ अब्राहम समझौते को लेकर सामने आ रही चर्चाओं ने एक अलग तरह की राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है, जहां इजराइल, सऊदी अरब, पाकिस्तान और दूसरे देशों के बीच नए समीकरण बनने की उम्मीद चर्चा में है। और इसी बदलते माहौल के बीच अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।